So, very good evening, one and all. I am Sushant Bargat, research scholar, PhD student, and a physics faculty. So, before starting the chapter, just recollect the things what you studied in last lecture. So, in last lecture, we started with the rotational motion, started with very basic introductory concept. What is the rotational motion? What is the rigid body? Axis of rotation, center of mass, then expression for kinetic energy in rolling motion. We get a formula that is the half I omega square. Then from that expression we get the formula for moment of inertia. That moment of inertia is nothing but the analogous to the mass, and I we stand for moment of inertia. I is equal to mr square. We get that. And one example we discussed on that moment of inertia, which is one of the important example asked in MSTCT and NEET also. After that we discussed the physical significance, some linear quantity analogous with the angular or rotational we called. Then we discussed the radius of gyration, which is one of the important concept, that is I is equal to mk square. So k stand for radius of gyration and k is equal to under root I by m we get. After that we discussed the expression for torque acting on rotating body. So torque acting on rotating body is nothing but the torque is equal to I alpha. Also we discussed that torque is nothing but the couple of force having the same magnitude but different directions, and another formula, that is the torque is equal to R into F. Okay, that is the moment arm into force is also known as the torque, and their unit and dimension. So that in last lecture. Now today we are going to cover the some new topic which is very important in entrance point of view, especially MHT, CET, NEET and JEE. So we have very less time for the exam preparation. So I am trying to just recollect the formula and concept and some numerical. See guys, the topic is very important. Today's lecture on rotational motion. Maybe your question on this topic may get asked. So today we are going to cover some major topic like a rolling motion without slipping, formula for their velocity and acceleration. Then very two important theorem. One is the parallel axis theorem, another is the perpendicular axis theorem. Then we discuss the angular momentum and law of conservation of angular momentum. ये सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग, देन angular momentum and law of conservation of angular momentum. So let's start with the rolling motion. Okay. सो रोलिंग मोशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. व्हाट इज अ रोलिंग मोशन? तो मैं एक लाइन में अगर मुझे कोई पूछे व्हाट इज रोलिंग मोशन, तो आई एम सिंपली सेइंग रोलिंग मोशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन. लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन का क्या मीनिंग है यहाँ पे? एक जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल. लेट अस कंसीडर दिस इज इंक्लाइंड प्लेन. ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ. लेट अस कंसीडर स्फीयर और मार्बल. और अगर वो स्फीयर या मार्बल यहाँ से छूटता है तो इट गोज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहां तक आएगा. अगर वो यहां से यहां तक आएगा तो यहां से ये हो गया लीनियर पाथ. बट वो मार्बल को आप अगर देखोगे तो मार्बल अपने अलोंग यानी खुद अलोंग एक्सिस भी रोटेट भी हो रहा है, तो उसको रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन दोनों मिलेंगे. टेक एग्जांपल ऑफ सिलेंडर. फिर से वही इंक्लाइंड प्लेन. कंसीडर दिस पेन एज अ सिलेंडर, और अगर मैं इसको छोड़ूं तो ऐसा नीचे तो आएगा, साथ में ऐसा रोल भी हो रहा है. तो रोल हो रहा है तो अलोंग एक्सिस रोल हो रहा है. ये अगर एक्सिस है अगर कंसीडर करें तो ये ऐसे अलोंग एक्सिस रोल हो रहा है और ऊपर से नीचे भी आ रहा है. तो दिस इज द लीनियर एंड रोटेशनल. तो व्हाट इज द रोलिंग मोशन? रोलिंग मोशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ रोलिंग मोशन is nothing but the combination of linear plus
लीनियर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। सो बात ऐसी है कि अगर मैं इसके काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन के लिए जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ rolling is nothing but the linear plus rotational काइनेटिक एनर्जी ई के। तो मैं इसको टोटल एनर्जी को ई रोलिंग ऐसा डिनोट करूं तो हो जाएगा। लीनियर मोशन के लिए क्या फॉर्मूला है? एवरीवन नोज दैट ई टी बोलता मैं इसको और इसको ई आर बोलता रोटेशनल के लिए। सो ट्रांसलेशनल और लीनियर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सही है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बट वी नो दैट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर। बट यहाँ पे हम पॉइंट मास अगर कंसीडर करें, रेडियस ऑफ गायरेशन के साथ उसको कंपेयर करें तो हो जाएगा एम के स्क्वायर। पुट दिस इन वन और दिस वैल्यू हियर। सो व्हाट वी गेट? ई रोलिंग इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से कॉमन क्या निकाल पाऊंगा मैं? तो मैं ऐसा ऑब्जर्व कर रहा हूं यहाँ पे कि हाफ और एम कॉमन निकलेगा। ओके, बट एक थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करता, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। यहां से निकलेगा ये, यहां पे आएगा, देयरफॉर e रोलिंग इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम v के जगह क्या आएगा अभी? सॉरी, m के स्क्वायर और ओमेगा के जगह आएगा v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो यहां से कॉमन क्या निकलेगा? हाफ m और v स्क्वायर अगर कॉमन निकालते हैं हम, हाफ m v स्क्वायर अगर कॉमन निकालते हैं हम तो बचेगा क्या यहाँ पे? कुछ भी नहीं, यानी 1। और मैं अगर यहां की बात करूं तो बचेगा क्या यहाँ पे? के स्क्वायर, ओके, सॉरी, हाफ एम स्क्वायर वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहां पे भी पुट कर सकते हैं हम, हाफ एम वी स्क्वायर 1 अपॉन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा किसके लिए? ई रोलिंग के लिए। क्या हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ से वी स्क्वायर भी गया ना, तो बचा क्या? के स्क्वायर और नीचे आर स्क्वायर, यहाँ पे एम और वी एज इट इज। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा रोलिंग मोशन के लिए। ओके, अभी इससे रिलेटेड और एक टॉपिक लूं मैं, तो रोलिंग मोशन, ये बहुत काम की चीज है। रोलिंग मोशन ऑफ बॉडी विदाउट स्लिपिंग, ऑफ बॉडी विदाउट स्लीपिंग मीन्स जस्ट स्लाइड हो रहा है वहां से, स्किप, स्लीपिंग। रोलिंग मोशन ऑफ बॉडी विदाउट स्लीपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो जस्ट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ डायग्राम। ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ऐसा कंसिडर करके चलिए। ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, बॉडी यहाँ पे है, ओके।
अगर बॉडी यहाँ पे तो ये हो गया इसका ग्राउंड लेवल से हाइट h, अगर ये नीचे आएगा तो आएगा लीनियर वेलोसिटी v से। ओके, तो यही हमें फाइंड करना है। ओके, थोड़ा इसको अगर देखें तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट s टोटल। ओके, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगा इसके लिए हमको फॉर्मूला होना, और इसका अगर एंगल देखा जाए तो ये थीटा। प्लीज पे अटेंशन। इसका इनिशियल वेलोसिटी u 0 है। ओके ओके, कम टू टॉपिक। ये था हमारा रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। लीनियर काइनेटिक एनर्जी, लीनियर रोटेशनल मोशन, फॉर्मूला पुट के आंसर आ रहा है ये हाफ एम स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक है। फिर रोलिंग मोशन ऑफ बॉडी विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग की बात कर रहा है, यानी जैसे ही बॉडी मैंने वहां पे रखा तो रोल होना चालू किया। उसका बेस्ट एग्जांपल है टेक अ मार्बल एंड पुट ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन एंड जस्ट रिलीज इट, व्हाट हैपन, विदाउट स्किटिंग इट गेट रोल्ड। ओके, अगर वो रोल करके नीचे आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर रोल करके नीचे आ रहा है तो उसको लीनियर मोशन भी मिल रहा है और रोटेशनल मोशन भी मिल रहा है। तो लीनियर और रोटेशनल मोशन जब मिलेगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, क्या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा तो ही काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगा। तो मैं ऐसा बोलूंगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, mgh, और व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज नथिंग बट ई रोलिंग ना, ई रोलिंग। तो ई रोलिंग का फॉर्मूला लगेगा है, तो mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो mm गेट कैंसल, तो बचा क्या gh, 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो बचेगा क्या, v इज इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे v स्क्वायर था ये, अगर मैं इसका स्क्वायर निकाल दूं तो मुझे इसको देना पड़ेगा स्क्वायर रूट। सो फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट 2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सी, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, इफ यू सी द फॉर्मूला, that velocity does not depend on the mass of the body, it depends on the acceleration due to gravity, radius r body, radius of the body, radius of gyration, इन दो चीजों के ऊपर, एंड हाइट एट विच द बॉडी सिचुएटेड, कौन से हाइट पे, ये सारी चीजों के ऊपर उसका v का वैल्यू डिपेंड करता है। ओके, सिमिलरली वी कैन गेट द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ऑल्सो। ओके, just find it out. Finding acceleration. ओके, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन निकालते समय मैं क्या बोल दूंगा, यहाँ पे अगर ये यहाँ से छूट रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी कन्वर्ट इनटू फाइनल वेलोसिटी। ओके, ये नीचे आ रहा है तो नॉर्मली एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, बट अपने का टाइम का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो क्यों ना मैं इसका काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करके निकालूं। सो वी टेक v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, बट इनिशियल वेलोसिटी u 0 है तो, बट u इज इक्वल टू 0 तो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, देयरफॉर a इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2s। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। ओके, बट बात ऐसी है, v का वैल्यू तो मेरे पास है तो v स्क्वायर भी मुझे मिल जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट s क्या है, s इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट।
तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं? अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो यहाँ पे मैं साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस अगर लिखा तो मैं ऐसा बोल सकता फ्रॉम फिगर एस मीन्स ये साइड हो गया मेरा, ओके ये 90 साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड हो गया एच, हाइपोटेन्यूस हो गया एस। क्या बोल रहा मैं? साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो अपोजिट हो गया मेरा एच, हाइपोटेन्यूस गया एच, तो यस इज इक्वल टू क्या होगा? एस इज नथिंग बट द एच अपॉन साइन थीटा, am I right? एच अपॉन साइन थीटा। कैसे आ समझा? फिर एक बार बता दूं मैं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा, ज्यादा कुछ नहीं किया, ये 90 एंगल थीटा है, तो इसको अगर मैं साइन थीटा कंसीडर करता हूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस यहाँ पे लिख देता हूं मैं, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अगर किसी को दिक्कत आए तो, ओके अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो अपोजिट मेरा हो गया h, हाइपोटेन्यूस हो गया s, तो मुझे फॉर्मूला s के लिए होना, तो s इज इक्वल टू क्या होगा? h अपॉन साइन थीटा। पुट दिस इन, इसको दे दू नंबर 1, पुट s इन 1, तो अगर मैं 1 में पुट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एच साइन थीटा, बट इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं, इसको मैं 2 बोल दूं, फिर इसको मैं बोलूं 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 अगर मेरा v का वैल्यू अगर पुट हो गया तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? 2gh, थोड़ा कैलकुलेशन कर दो, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू नीचे का टर्म ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 2h, तो ये 2h कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? a इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ओके। अभी मेरे पास पूरे फॉर्मूले आ गए, अभी मैं जाऊंगा न्यूमेरिकल के लिए, बट बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल जस्ट सी द थिंग्स, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। रोलिंग मोशन का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग, वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसा है ये भी आपको पता चल गया। एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज किया, वी स्क्वायर, एक्चुअली 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है आपको पता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मोस्ट सुटेबल एक्सप्रेशन ये है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पुट किया तो v स्क्वायर 2as, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2s, फ्रॉम फिगर ये आया, वैल्यू पुट किया, ये मिल गया, इसको पुट किया फ्रॉम 1, ओके लिख भी दिया मैंने, फ्रॉम 1 चीजें कैंसिल होगी, सॉर्ट आउट किया। ये थोड़ा फॉर्मूला देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, व्हाट यू ऑब्जर्व that acceleration is also do not depend on the height nor a mass of the body, बॉडी हेवी है लाइट है, इसके ऊपर उसका एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं कर रहा। फिर एक्सेलरेशन डिपेंड किसके ऊपर कर रहा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेशन इन रोलिंग मोशन डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट ऑन अ बॉडी, बस, और बाकी के और आर भी आपका चीजें हैं, ओके। सो अभी इसके न्यूमेरिकल के लिए जाते हैं, एक्चुअली न्यूमेरिकल नहीं, मैं कुछ फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं उसके लिए, लुक एट दिस।
सो अभी तक हमें ये मिला रोलिंग मोशन, सॉरी, एनर्जी इन रोलिंग मोशन क्या मिला, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ओके, देन वेलोसिटी हमको जो मिली नथिंग बट द अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और एक्सेलरेशन जो मिला हमारे को मिला g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. देखो फॉर्मूले लर्न करने के लिए हार्ड नहीं है. क्यों हार्ड नहीं है? क्योंकि अगर ई रोलिंग का यानी एनर्जी का अगर फॉर्मूला देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी तो पता है हमको एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर होता ही है, बट व्हाट यू गेट द एक्स्ट्रा टर्म 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. सी द वेलोसिटी अंडर रूट 2gh है, उसके बाद 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मिल रहा है, यही टर्म 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. फिर एक्सेलरेशन देखो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. मींस ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो ब्रैकेट है ये कॉमन है. तो अगर उसको ध्यान में रखें हम तो ये तीन फॉर्मूले हमेशा हमारे को मिलते रहेंगे. यानी हमको याद क्या रखना है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है तो याद रहता ही है, इसको एडिशनल पता रखना है. वेलोसिटी अंडर रूट 2gh इसको याद करना है, ये तो एडिशनल पता ही रहेगा इसके साथ. एक्सेलरेशन जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर. तो नॉट हार्ड टू लर्न और नॉट रिमेंबर फॉर नॉट. सो इट इज द फॉर्मूला. नाउ क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, थोड़ा अपने तरीके से लिखने की कोशिश करता है, ऐसे तो नहीं आते. एक्चुअली फॉर्मूला ही मैं कंस्ट्रक्ट करके दे रहा हूं आपको, हमारे को निकालना पड़ेगा, वो वैल्यू देंगे, हमारे को आंसर निकालना पड़ेगा. तो अगर मैं बोलता हूं कि अगर ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, अगर ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, ओके, और इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉडी है. नाउ कंसिडर दैट बॉडी इज अ रिंग. क्या है? रिंग. तो रिंग है तो ऑब्वियस है, मैं थोड़ा बड़ा निकालता हूँ इसको. कंसिडर दिस बॉडी एज अ रिंग. ये रिंग है, रिंग है तो रिंग का रेडियस है. अब ये नीचे आ रहा है बॉडी, तो हमें क्या निकालना है? ओके, हमें निकालना है इसका वेलोसिटी कितना है, हमें निकालना है इसका एक्सेलरेशन कितना है, और हमें निकालना है के का वैल्यू कितना है, रेडियस ऑफ गायरेशन, साथ में एनर्जी भी निकाल लो. 4 फॉर्मूले निकालने की कोशिश कर रहा मैं यहाँ पे. क्या क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ये रहेगा इसका एंगल थीटा मे बी गिवन रहेगा, ये एंगल 90. इफ अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम टॉप पोजिशन एंड रिचेस टू द ग्राउंड, देन व्हाट इज द वेलोसिटी इन रोलिंग मोशन, what is the acceleration in rolling motion, what is the kinetic energy in rolling motion, and what is the energy in rolling motion. obvious है. अभी आपको बस एक बात बता दूं मैं, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन पार्ट बचा हुआ है, हिंट बता दूं. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग होता है आई ऑफ रिंग एम आर स्क्वायर. ओके, ये थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि कुछ ही देर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेगुलरली शेप बॉडी जस्ट लाइक रिंग, रॉड, सिलेंडर, फिर उसके बाद स्पीयर, ये भी निकालने वाले हैं. सो वेट एंड वॉच. सो हिंट है तो हमें वेलोसिटी निकालना है. अभी ऑब्वियस है, काइनेटिक एनर्जी का अगर फॉर्मूला लूं मैं तो पता है ई रोलिंग क्या है. ई रोलिंग इज नथिंग बट द हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. वेरी गुड. ओके, फाइंडिंग द के फॉर रिंग. ओके, अभी आपको पता है व्हाट इज के इज नथिंग बट द आई बाय एम, बराबर है. बट आई क्या है, यहाँ पे रिंग की बात कर रहा. ये क्या है, मैं इसको बता दूं कि ये क्या है, रिंग की बात कर रहे हो, बराबर है. सो
रिंग की अगर बात करें तो इसको बोल दूं रिंग, तो मुझे पता है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर, क्या है हाफ एम आर स्क्वायर, तो हो जाएगा के ऑफ रिंग इज नथिंग बट द आई एम आर स्क्वायर अपॉन एम, एम एम गेट कैंसिल, तो के इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू आर। ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रिंग पहला। फिर निकालना मुझे वेलोसिटी v, तो v इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अभी पता है आपको k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू होता है r, देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस k का वैल्यू r, तो r स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस 1, तो बचा क्या 1 1 2 2 2 गेट कैंसिल, तो बचा gh। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया मेरे वेलोसिटी का रिंग का रोलिंग मोशन में। फिर मेरा बचा क्या एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कितना इजी लग रहा है ये सब सॉल्व करने के लिए, ये कब इजी लगेगा जब ये फॉर्मूले लर्न रहेंगे, ये फॉर्मूले आपको पता है। ओके, फिर से a इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के का वैल्यू कितना है r, तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या a इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1। ओके, देयरफॉर a is equal to g sin theta upon 2. Okay, that is a is equal to 1 by 2 g sin theta. ये हो गया एक्सेलरेशन इन रिंग, वेरी इजी। ओके, ये सब शॉर्ट ट्रिक्स एक्चुअली आपको न्यूमेरिकल आएगा, ऐसे फॉर्मूला डिराइव करने के लिए नहीं आएगा, बट आई एम ट्राइंग टू कवर इट। मैं बता रहा आपको कि ये चीजें कैसे होगी। ओके, कैसे फॉर्मूले कंस्ट्रक्ट होंगे। नो नीड टू लर्न द व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिंग इन रोलिंग मोशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। ओके, कितने फॉर्मूले लर्न करोगे, रिंग है, स्पीयर है, सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, स्पीयर है, हॉलो स्पीयर है, ओके, रॉड है, इतनी सारी रेगुलरली शेप बॉडी है, तो हर एक बॉडी के लिए याद करना काफी मुश्किल है, भूल भी सकते हैं याद करने के बाद, बट हम इस तरीके से निकाल भी सकते हैं। बट आपको 3 ही फॉर्मूले याद रखना है, 1 2 3 फॉर्मूले पता है आपको तो आप कोई भी निकाल सकते हैं। ये तो फॉर्मूला पता है सबको, के का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन है, वो भी अंडर रूट में। ओके, जिस जिस बॉडी का रहेगा उसका आपको इनर्शिया लिखना है। फिर से एक एग्जांपल लेता मैं, क्वेश्चन, यही आपका इंक्लाइंड प्लेन है। ओके, इंक्लाइंड प्लेन पे अभी एक मैं बॉडी लेता, लेट अस कंसीडर स्पीयर लेते हैं। क्या लेते हैं, स्पीयर। ओके, स्पीयर का रेडियस r। ओके, अब ये नीचे आएगा तो इसका वेलोसिटी, इसका k वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारा निकालना है। लेट अस कंसीडर 90 एंगल थीटा है। ओके, आपको ऐसा नहीं फॉर्मूला नहीं डिराइव करना है, आपको न्यूमेरिकल आएगा। मैं 10 बार आपको वही बता रहा। ओके, यहां तक ये सारा निकलना है रोलिंग मोशन के लिए। किसके लिए निकलना है, रोलिंग मोशन के लिए, फॉर रोलिंग मोशन। ओके, फॉर रोलिंग मोशन निकलना है। ओके, सो कम टू द टॉपिक। और मेरा ये बॉडी कौन सा है, ये है मेरा स्पीयर। हिंट भी दे दूं क्योंकि ये टॉपिक लेना वाला है। रेगुलरली शेप बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया ऑफ स्पीयर होता है 2/5 mr²। क्या होता है, 2/5 mr²। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक।
यस आई एम राइट, 2/5 ये हमारा, क्योंकि ये अगर गलत हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आंसर नहीं आएगा। ओके सी, अभी हम फाइंड कर रहे हैं, ये हिंट है। ओके, we know that